Welcome back to lecture second of this chapter. Myself Kasim Qureshi, and in this section we are going to study about division of organisms. Okay, ऑर्गेनिजम्स को हम कैसे क्लासीफाई करते हैं वो हम इस सेक्शन में स्टडी करने वाले हैं. सो बेसिकली ऑर्गेनिजम्स दे आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज. द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिज्म इज prokaryotic organism, okay, or we can say prokaryotic cell, and the second one is eukaryotic cell. Correct? Prokaryotic cell and eukaryotic cell. Let us understand the meaning of prokaryotic, eukaryotic. Karyotic word is same in both this term. ठीक है. Karyotic का मतलब होता है न्यूक्लियस. क्या मतलब होता है karyotic का? न्यूक्लियस, राइट? और यहाँ पे भी karyotic है तो इसका मतलब भी सेम रहेगा. It means nucleus. So the word karyotic means nucleus. Now let us understand the meaning of pro and the meaning of eu. प्रो मीन्स, देखो ये कोई नया टॉपिक नहीं है. लास्ट ईयर 8th स्टैंडर्ड में जो फर्स्ट चैप्टर था आपका लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ओके, एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स, उस टॉपिक में आपने ये स्टडी किया था. प्रोकैरियोटिक, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव. प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, ओके, और यो का मतलब होता है ट्रू. So if the cell is primitive type of cell, we call it as prokaryotic cell, while if the cell is the present type or true type of nucleus, then the cell we call it as eukaryotic organisms. ठीक है. Let us understand the basic structural difference between the prokaryotic and eukaryotic cells. ठीक है. तो ये दोनों सेल है. लेट्स से ये सेल का न्यूक्लियस है, यहाँ पर ये भी सेल का न्यूक्लियस है. दिस मेम्ब्रेन विच इज जस्ट लाइनिंग outside, okay, this interior to that nucleoplasm is there and exterior to it cytoplasm is there. Correct? This membrane we call it as nuclear membrane. Okay, so this membrane we call it as nuclear membrane. Correct? This is a borderline which keeps separated the cytoplasm and the nucleoplasm. Both are separated from each other. Okay, the cytoplasm and the nucleoplasm both are separated from each other because of this boundary line which is present between the cytoplasm and nucleoplasm. Correct? Now inside the nucleus we have the genetic material. Correct? So let's say that this is genetic material and exterior to it is cytoplasm. So let's say that this material is cytoplasm. Correct? Now what happens is, if this membrane, अगर ये membrane मैंने dissolve कर दिया, मतलब इसका membrane, इसकी boundary line are not well defined. The cell membrane, okay, the nuclear membrane and other organelles membranes, if the boundary line is not well defined, तो क्या होगा? जेनेटिक मटेरियल ये सारी चीज़ में कुछ डिस्टिंग्विश नहीं रहेगा, वो कम्प्लीटली एक ही चीज़ रहेगा. तो जब वो कम्प्लीटली एक ही चीज़ होता है तो हम उसे कहेंगे प्रोकैरियोटिक. Understood? And if the boundary lines is well defined, then we call it as eukaryotic organism. Okay, तो जब बाउंड्री लाइन वेल डिफाइन रहेगा, साइटोप्लाज्म अलग, न्यूक्लियोप्लाज्म अलग, बीच में एक बाउंड्री लाइन प्रेजेंट है, तो हम उसे कहेंगे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. करेक्ट? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. ओके, अब ये जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है, इसके बेसिस पे हम आगे का क्लासिफिकेशन भी स्टडी करने वाले हैं. ठीक है, चलिए आगे का क्लासिफिकेशन क्या है वो देख लेते हैं. Okay, so let's begin with the classification part. So living organisms. Living organisms, they are divided into two categories. Just now we have studied, it is based upon the type of cell. तो पहला वाला है prokaryotic cell, okay, आणि
प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। क्या होता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल, वो हमने देख लिया, तो अब उसके डिटेल में हम नहीं जा रहे। याद है आपको, आपने स्टडी किया था किंगडम मोनेरा, देन किंगडम प्रोटिस्टा, देन किंगडम फंगाई, फंगाई के बाद में किंगडम प्लांटे, और फिर हम स्टडी करेंगे एनिमेलिया, एनिमेलिया, ठीक है। कहाँ स्टडी किया था, फिर 8th स्टैंडर्ड में स्टडी किया था। देखो बार बार मैं 8th स्टैंडर्ड बोल रहा हूँ, एक्चुअली कनेक्शन क्या है 8 में, 9th में, 10th में क्या कनेक्शन। 8th स्टैंडर्ड में आपने प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक स्टडी किया था डिस्टिंग्विश के साथ, ठीक है, और आपने किंगडम मोनेरा स्टडी किया था, प्रोटिस्टा स्टडी किया था, फंगाई भी स्टडी किया था। कहाँ पे, 8th स्टैंडर्ड में। 9th स्टैंडर्ड में ये आपने किया था 8th स्टैंडर्ड में, करेक्ट, यहाँ तक। और अब 9th स्टैंडर्ड में आप क्या स्टडी कर रहे हो, प्लांट स्टडी कर रहे हो, और जब आप 10th में जाओगे तो आपको स्टडी करना है एनिमेलिया। बेटा ये सीक्वेंस है, सीक्वेंस याद रखोगे तो आप भूलोगे नहीं कि हमें क्या करना है, क्यों कर रहे, और क्या उसका इवोल्यूशन है, कैसे आया है, ठीक है। तो 3 चीज़ें ऑलरेडी आप स्टडी कर चुके हो 9th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड में। प्लांट्स के बारे में आप अभी स्टडी कर रहे हो, पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, और आप जब 10th में जाओगे तो वो टाइम पे आपको एनिमेलिया चैप्टर रहेगा बोर्ड एग्जामिनेशन में, ठीक है। सबसे बड़ा पार्ट वही है आपका ये वाला, तो उसको 10th में हमने रखा है, ठीक है। तो अब प्रोकैरियोटिक के अंदर किंगडम मोनेरा आता है, करेक्ट, किंगडम मोनेरा, ठीक है। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जो है, तो इसको सबसे पहले हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो 2 पार्ट कौन कौन से हैं, तो पहला पार्ट का नाम है यूनिसेल्युलर और सेकेंड पार्ट का नाम है मल्टी सेल्युलर। तो मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। फर्स्ट वन इज यूनिसेल्युलर और सेकेंड इज मल्टी सेल्युलर, ठीक है। आप अगर इसी तरीके से मेरे साथ में जुड़े रहेंगे पूरे 9th स्टैंडर्ड, ठीक है, तो 10th स्टैंडर्ड और 9th स्टैंडर्ड मिला के, मतलब 10th का जो रिजल्ट आएगा आउटस्टैंडिंग रिजल्ट आपको मैं प्रोड्यूस करके दिखाऊंगा, ठीक है। अगर सारी चीज़ें आपको साइंस की जो बेसिक चीज़ें वो पता है तो भाई क्यों नहीं आ सकता है आपको 100 में से 100, 100 में से 99 तो भूल जाओ, 100 में से 100 ही लेके आना है। तो क्यों नहीं आ सकता है, जब वो ला सकता है, ये ला सकता है, तो हम क्यों नहीं लेके आ सकते। उसका मेजर इसका जो मेजर रूट कॉज है वो है आपके बेसिक्स। अगर आपके बेसिक 9th स्टैंडर्ड से ही स्ट्रॉन्ग रहेगा, सारी चीज़ें आपको अच्छे से आती रहेंगी, तो कोई नहीं है, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको 100 में से 100 लाने से रोके। अंडरस्टूड। तो मेहनत अभी से स्टार्ट कर दीजिए। ये आपका फर्स्ट चैप्टर है साइंस 2 का 9th स्टैंडर्ड में। अगर आपने 9th सीरियसली स्टडी किया है, ठीक है, बेसिक कंटेंट, आई एम नॉट टॉकिंग कि चैप्टर, आपने बेसिक कंटेंट अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो साइंस में 100 में से 100 मेरी गारंटी है आपको दिलाना 10th स्टैंडर्ड में, ठीक है। चलिए, तो यूनिसेल और मल्टीसेल। अब यूनिसेल के अंदर ये सेकेंड किंगडम आता है, ओके, सेकेंड किंगडम आता है एंड दैट इज प्रोटिस्टा। द सेकेंड किंगडम इज प्रोटिस्टा। बचा मल्टीसेल। मल्टीसेल को अगेन हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पे लिखता हूँ मैं। पहला वाला है विद सेल वॉल और सेकेंड वाला है विदाउट सेल वॉल, ठीक है। तो ये डिस्टिंग्विश आपने पढ़ा रहेगा कि सेल वॉल जो है प्लांट्स को ही खाली होता है और एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होता है, सेल वॉल उसमें होता ही नहीं है। तो विद सेल वॉल के अंदर 2 चीज़ें आती हैं। फर्स्ट है, शायद से जगह कम पड़ेगी लिखने के लिए, तो फिर भी सुन तो रहे ही हो आप। तो फर्स्ट वाला फंगाई है, फंगाई, और नेक्स्ट इज प्लांट है, करेक्ट, प्लांट है। और अगर बात करो विदाउट सेल वॉल तो इसके अंदर खाली एक ही आता है एंड दैट इज एनिमेलिया,
ठीक है, तो ये आप स्टडी कर चुके हो प्रीवियस ईयर, ये भी कर चुके हो, ये भी कर चुके हैं। इसके बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करने वाले हैं और ये हम नेक्स्ट ईयर स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, चलिए ये आप लोग कॉपी कर लीजिए। फिर नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग स्टार्ट करेंगे प्लांट है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स।